باقی سچے ساری جماعت کے لیے تیرا شکر تیری تعریف تیری زندگیوں کے لیے نعمتوں برکتوں کے لیے جو تُو نے پورا سال ہمیں بخشا تیرا شکر تیری تعریف آج کی برکات میں ان لوگوں کی ماں تھی جو ابھی تک اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے تو اپنی برکات ان تک بھی پہنچائے اس یہ سب کو تیرے جلالی نام میں مانگ کے رکھتا ہوں آمین. تھینک یو. خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القدس کے نام میں آمین. عزیزوں میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ اتنی گرم جوشی نظر نہیں آئی جیسی ہونی چاہیے تھی اور پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا بات ہے اس میں لیکن یہ کہ کیا سردی ہے پتہ نہیں ہو سکتا لیکن جیسے سیزن تھا سیزن کے لحاظ سے کچھ ایسا جوش نظر نہیں آیا. کچھ میرا خیال ہے مجھے معاف کیجئے کہنے سے کچھ کوائر بھی ذرا کچھ اتنی سیٹ نہیں تھی پورے طور پر. ہاں کچھ بھی ہو پر بصورت کچھ نہ کچھ اس میں اور میں اس کے لیے آپ سب سے معافی مانگتا ہوں اس چیز کے لیے کیونکہ ذرا اس کو اور زیادہ اچھا ہونا چاہیے تھا. ہم نے 2 سال کے بعد اس کو دوبارہ کیا ہے. ہم 19 میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی دوسرے چرچ کے اندر اور 20 اور 21 تو ہوئی نہیں ہے. تو جیسا چاہیے تھا مسیح کا جیسے ہم اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں یہ مسیح کا برتھ ڈے ہے. مسیح کی پیدائش نہیں ہے اس کا برتھ ڈے ہے. ہم اس کے برتھ ڈے کی خوشی کو منا رہے ہیں. تو عزیزوں یہ میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا تھا. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے اس کو ان آیتوں کو پڑھنا چاہتا ہوں. ذرا غور سے دھیان سے اس کو سنیے کیونکہ ذرا آواز جو تھی وہ پوری میرا خیال آپ تک پہنچی نہیں ہوگی. شاید پہنچی بھی ہوتی اتنی تھی. لوکا کی انجیل میں سے ہے اور اس کا دوسرا باب ہے اس علاقے میں چرواہے تھے. ایک علاقے کی بات ہو رہی ہے. اس علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے. اپنے گلہ کی. یہ بھی یاد رکھے کہ یہ گلہ ان کا اپنا نہیں تھا. جو چرواہے تھے یہ بھیڑیں جو ان کے پاس تھیں یہ ان کی اپنی نہیں تھی. یہ بھیڑیں وہ پال رہے تھے کس کے لیے؟ یروشلم میں ہیکل کے اندر قربانیاں چڑھانے کے لیے. تو یہ اس کی گلہ بانی کر رہے تھے. ان کی بڑی کیئر کی جاتی تھی. آپ کو پتہ ہے آج بھی جب مسلمان یہ عید مناتے ہیں یہ قربانی کی تو اس کو دیکھتے ہیں پوری طرح سے کہ یہ اس میں کوئی نقص نہ ہو. تو ان کا یہ کام تھا. اور بات یہ ہے کہ یہ جو بھیڑیں ہوتی تھیں جب وہ لیم جب پیدا ہوتا تھا تو اس کو ایک دم کپڑے میں لپیٹتے تھے. لیم کو مسیح کی اور مسیح خدا کا برہ ہے اس کی اور یہ برے جو قربانی کے لیے جاتے تھے ان میں بڑی مماثلت ہے. ان میں بڑا یہ نہ سمجھے کہ وہ میدان میں تھے اور مسیح جو ہے وہ ایک پاک شخص تھا اور وہ ایسے تھا. ان میں بڑی مماثلت ہے. آپ نے کہیں بائبل میں کسی انجیل میں یہ نہیں لکھا پڑا کہ مسیح جب پیدا ہوا تو اسے بڑے اچھے کپڑے پہنائے گئے. بڑے اس کے لیے کوئی بڑے اچھے سویٹر لائے گئے یہ کوئی چیز پہنائی گئی نہیں. کہیں نہیں ہے. یہ کیا لکھا؟ سویڈلنگ کلوتھس.
व्हाट आर स्वेटिंग क्लोथ्स? स्वेटिंग क्लोथ्स क्या होते हैं? खुला कपड़ा। और ये खुला कपड़ा क्या होता था? ये खुला कपड़ा जो है, ये आम तौर पर, और मरियम को चूँकि पता था इन सारी चीज़ों का, मरियम ये खुला कपड़ा जो है वो एन मुमकिन है जकरिया से लेकर उसका जो पुराने गाउन थे, वो गाउन जो हैं उनको लेकर वो आई थी ताकि मसीह को उसमें लपेटा जाए। तो यह है कि खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका। जलाल क्या है? ग्लोरी ऑफ गॉड, खुदा का जलाल वो उनके गिर्द चमका और वो नहायत डर गए, डर है। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें, तो अब ये देखें, ये एक फरिश्ता है। सबसे पहले जो जाहिर हुआ गडरियों पर वो एक फरिश्ता था, और उस फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। तो खुशी की बशारत क्या थी? जो सारी दुनिया के वास्ते है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ, फिर कपड़ा ही है, कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते, अब फरिश्ता एक बोल रहा था, अब एक ग्रोह आ गया ऊपर से, अब यह ग्रुप है पूरा, और वो ग्रुप जो है वो क्या कर रहे हैं? यकायक फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदावन की हमद करती है। अब ये गीत गा रहे हैं, दिस इज अ सेलिब्रेशन। आज हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं? टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए। तो हम ऐसे चुप करके और ऐसे क्यों, हम कोई अफसरदा तो नहीं है कि मसीह पैदा हुआ। हमें खुशी है इस बात की, वो मुनज्जी है हमारा। और वहाँ पर भी जब फरिश्ते आए तो उन्होंने गीत गाया, उन्होंने गीत गाया, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनस। बड़ा टिपिकल पर्टिकुलर किस्म का गीत है जो उन फरिश्तों ने वहाँ पर गाया। तो ये रीडिंग थी, और मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले, और ये दो चीज़ें ये हैं कि एक तो यह कि क्रिसमस एक वाहिद फंक्शन है जो कि इट इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, सारी दुनिया के अंदर, चाहे कोई उसे जानता है चाहे नहीं जानता। बहुत सारे गैर मसीही हैं, वो भी क्रिसमस मना रहे हैं, और हमारे बहुत सारे मसीही हैं, हमारे मसीही हैं, इसको ध्यान से सुने, हमारे मसीही हैं जो क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन मसीह वहाँ, देयर इज़ नो क्राइस्ट देयर, मसीह वहाँ मौजूद नहीं है उनके घरों में, लेकिन दे आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, बट क्राइस्ट इज एब्सेंट। You have to check it, you have to see it. Are you celebrating Christmas and there is no Christ inside? आपको कहानी वो बड़ी मशहूर सी है, मैं उसको पूरा तो नहीं सुनाता हूँ, टाइम बड़ा लग जाएगा। लेकिन आदमी एक घराना था, उन्होंने बड़ा मसीह क्रिसमस वाले दिन खाना खुना बनाया। उन्होंने कहा हमने खाना नहीं खाना जब तक मसीह नहीं आएगा, मसीह आएगा तो हम खाना खाएंगे। Then what happened? There came a beggar. He said, "Can you give me a food?" और उन्होंने कहा जी लो, we are waiting for Christ.
टू कम। उन्होंने उसको भेज दिया। एक लेपर आया, उसने खाना मांगा, उन्होंने नहीं दिया। और एक तीसरा और बैगर आया, सुबह सुबह हुई, सर्दियों के दिन 4 बजे थे, फिर ना कोई उसी खुदावंद आ गया। वो बड़े खुश हुए, हम तो इंतजार कर रहे थे, हमने खाना नहीं खाया। तो मसीह ने कहा, वो जो पहले आए थे वो कौन थे? वो मैं ही था। तो ये है कि मैं आपको सिर्फ इसलिए ये बता रहा हूँ कि हम क्रिसमस मनाते हैं, वी सेलिब्रेट क्रिसमस, लेकिन जीसस इज एब्सेंट। वह मसीह को इनवाइट नहीं करते। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि क्रिसमस जो है वो सारी दुनिया के अंदर मनाया जाता है, और मैं आज अब भी मनाया जा रहा है। अजीब बात है, ये कोई हफ्ता हो गया है, मैं न्यूज़ सुन रहा था BBC की, और न्यूज़ के ऊपर क्या आ रहा था, एक बड़ी अजीब बात आ रही थी। और वो बात ये थी कि क्रिश्चियंस आर माइनॉरिटी इन इंग्लैंड। उसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा था, क्रिश्चियंस आर इन माइनॉरिटी इन इंग्लैंड, इन UK, इन इंग्लैंड, देयरफॉर गवर्नमेंट शुड स्टॉप द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ये हाल है इस मुल्क का कि क्रिश्चियन जब माइनॉरिटी में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि संडे वाले दिन बड़े बड़े मैच होते हैं, सुबह सुबह लोग मैच देखते हैं, वो चर्च को क्या करें। तो ये हाल है कि वो कहते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड, इसलिए कि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो गवर्नमेंट का चर्च है, तो उन्होंने उसका नाम ही लिया है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड को बंद कर दें, उसका नाम ना लिया करें, क्योंकि ये मिनॉरिटी में चले गए, ये हमसे कम हो गए हैं। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मसीह जो है वो इस दुनिया में आया और उसने ही डिवाइडेड दिस द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ही डिवाइडेड इनटू 2। आप ये जानते ही हैं कि वी कॉल वन पार्ट एज BC, दैट इज बिफोर क्राइस्ट, द अदर पार्ट यू कॉल इट AD इज Anno Domini, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। और मुझे हैरत हुई, इमरान खान हमारा पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म था, जब वज़ीर आज़म था तो एक तकरीर में कह रहा था कि हज़रत ईसा का तो हिस्ट्री में नाम ही नहीं है, तारीख़ में नाम ही नहीं है। उसको ये नहीं पता कि हज़रत ईसा ने तो तारीख़ को बनाया और उसको तकसीम किया। और अभी तक हमारे बर्थडे जाऊँ किस पर, अगर मैं ये कहूँ कि मैं लेट्स से कि अक्टूबर में पैदा हुआ था, सन लेट्स से कि 1930 में पैदा हुआ था, तो दैट मीन्स कि मैं 2000 साल पहले से लेकर या 1900 साल पहले से लेकर अब पैदा, मैं अपने आप को मसीह की जो बर्थ है उसके साथ जोड़ रहा हूँ। मेरा बर्थडे जो है वो मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। इन सब लोगों के बर्थडे वो जानते नहीं हैं, लेकिन उनके बर्थडे जो हैं वो मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। तो अजीज़ों, ये पहली बात तो ये थी, मैं आपको बताना चाहता था कि इसकी अहमियत क्या है। अब ये है कि ये जो रीडिंग आपके सामने की गई, इसमें हम शेपर्ड्स को देखते हैं। मैं आपको 3 चीज़ें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। शेपर्ड्स को देखते हैं। ये शेपर्ड जो है वो वहाँ पर अपने गल्ला की, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी निगहबानी कर रहे थे, और अचानक एक चीज़ नमूदार हुई।
कुछ समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ, और जो कुछ हुआ दिस चेंज द होल वर्ल्ड। जो कुछ हुआ उससे क्या हुआ, सारी दुनिया में तब्दीली आ गई, सारी दुनिया के अंदर तब्दीली आ गई। सिर्फ ये नहीं कि शेपर्ड्स की ज़िंदगियां बदल गई, वो जो चौपान थे उनकी ज़िंदगियां बदल गई, बल्कि मिलियंस ऑफ पीपल, ट्रिलियंस ऑफ पीपल, पता नहीं उस वक्त से अब तक कितने लोग हैं whose lives were changed, जिनकी ज़िंदगियां तब्दील हो गई। क्रिसमस जो है वो हमारे लिए 3 यूनिक चीज़ें जो हैं वो हमें बताता है। इस रीडिंग जो आपके सामने की गई उसको अपने जहन में रखें। 3 चीज़ें जो हैं वो हमें बताता है। फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट इन द होल ऑफ द यूनिवर्स। मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट, खुदा का ये तोहफा है। क्रिसमस, मसीह जो है, क्रिसमस मीन्स मसीह जो है वो एक ऐसा तोहफा है जो सारी दुनिया, सारी कायनात के अंदर इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट। पहली चीज़ जो है वो ये है। सेकंड थिंग इज दैट इट इज प्राइसलेस। आपको कोई कीमत नहीं अदा करनी है इसकी, इट्स प्राइसलेस। ये मुफ्त आपको मिलता है, क्योंकि मसीह ने 2000 साल पहले आकर तो उसने क्या किया है उसने अपनी ज़िंदगी से उसकी कीमत जो है वो अदा कर दी हुई है। इसलिए इट्स नाउ फ्री फॉर अस, हमारे लिए ये फ्री है। और तीसरी बात ये है कि इट्स एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल। आपको कुछ इसके लिए करना नहीं है, इट्स प्रैक्टिकल, बिल्कुल आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज इट थ्रू आउट योर होल लाइफ। अपनी सारी ज़िंदगी इसको आप इस्तेमाल करें तो आप ये गिफ्ट जो है वो आपको इस्तेमाल होता रहता है। इसलिए अजीज़ों, ये जो फरिश्ते थे, ये जो एंजल्स थे, उन्होंने जो कुछ मसीह के बर्थ पर जो उन्होंने अनाउंसमेंट की, उनमें 3 चीज़ें जो हैं वो आपको फिर मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग इज इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन है, क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेशन है। फरिश्तों को क्या किया, लिखा यह है कि खुशी की खबर, मैं तुम्हें खुशी की बशारत मीन्स खबर, बशारत का मतलब है खबर, तो मैं तुम्हें खुशी की खबर देता हूँ। तो ये खुशी की खबर है। जब हमें खुशी की खबर मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, खुशी, मिठाई बांधते हैं, मिठाइयाँ बांधते हैं। ये आप हमारा एशियन कल्चर जो है उसमें आप जानते हैं कि जब भी घर में कोई खुशी होती है या हमें कोई खुशी की खबर मिलती है तो मिठाइयाँ बांधते हैं। हम लड्डू ले लेकर एक दूसरे के मुंह में ठूंसते हैं। तो ये है कि ये खुशी की बशारत है, मसीह की पैदाइश जो फरिश्तों ने हमें दी, और खुशी की बशारत जो है ये सेलिब्रेशन है। दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस। ये वजह है कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हें, ये इस फिक्रे को अगर आप याद करें, मैं तुम्हें खुशी की खबर, खुशी की खुशी, तुम्हें मीन्स इट इज़ पर्सनल। मतलब ये है कि ये खुशी की खबर जो है ये पर्सनल है। मैं तुम्हें खुशी की खबर देता हूँ, बशारत देता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है, जो क्या है, सारी दुनिया, इट्स आल्सो यूनिवर्सल, इट्स पर्सनल
एंड इट्स यूनिवर्सल, सारे जहान के लिए है। तो ये हमारे लिए ज़ाती तौर पर भी है और ये सारे जहां कुल दुनिया के लिए भी है, कुल दुनिया के लिए भी है। तो पहली बात तो इसमें ये है, याद रखें कि खुदा जो है इस क्रिसमस पर मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें बीच में बता रहा हूँ कि खुदा इस क्रिसमस के ऊपर याद रखें कि गॉड लव्स यू, खुदा आपको प्यार करता है। गॉड इज विद यू, आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। और तीसरी चीज़ कि खुदा जो है गॉड इज फॉर यू। तो हम इसको यू की जगह मी करें और आप सब इसको कहें, अपना मुंह खोले कहें, गॉड लव्स मी, God loves me. God is with me, God is with me. God